عورت کی عزت دیکھی، جنت اس کے قدموں کے نیچے. تجھے 9 مہینے تیرے وزن کو اٹھایا، تجھے پیدا کیا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور 2 سال تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا. میرے بھائیو، یہ 3 احسان ہیں، یہ 3 تکلیفیں ہیں، یہ 3 مصیبتیں ہیں جو دنیا کے اندر باپ کو نہیں ہوتی ہیں، ماں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ عورت کی عزت نہیں، عورت کا مقام اسلام کے اندر نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک تابعین ہے اور ان کا نام ہے اویس القرنی، یمن کے رہنے والے، اسلام لے آئے اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ، بولو صلی اللہ، زور سے بولو صلی اللہ، اور زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کا نام آئے تو کیا کہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، اس معاملے میں بریلوی بہت آگے ہیں، درود پڑھنے میں وہ آگے، اور اہل حدیث جو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں یہ درود کے معاملے میں سب سے پیچھے. جب بھی نبی کا نام آئے تو کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی ہیں، ایک آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے، نام ہے ان کا اویس القرنی. اسلام لے آئے، ملنا چاہتے ہیں امام کائنات سے، لیکن ماں بیچاری بولی ہے، بستر پر بیڈ پر پڑی ہوئی ہے، اور ان کی ماں نے حضرت اویس القرنی کو روک لیا. اللہ کے نبی کو جبرائیل نے یہ خبر دے دی تھی، آئے امام کائنات، آئے اللہ کے نبی، ایک ایسا آدمی ہے اس کا نام اویس القرنی ہے، وہ آپ سے ملنے آنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں اور اپنی ماں کی سفارش پر وہ آپ سے ملنے نہیں آئے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا، آئے میرے صحابہ، سب سے بہترین تابعی اویس القرنی ہے. ان کے اللہ کے نبی نے صفات کو بیان بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا، آئے میرے صحابہ، جب تمہیں اویس القرنی مل جائے ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا. حضرت عمر فاروق نے امام کائنات سے اس حدیث کو سن رکھا تھا. غالباً 23 ہجری یا 24 ہجری کا موقع ہے، یمن سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. حضرت عمر نے سارے حاجیوں کو جمع فرمایا اور سوال کیا، کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی ہے؟ حضرت اویس القرنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاں میں اویس القرنی ہوں. آئے امیر المومنین، آپ جس کا سوال کر رہے ہیں میں وہی شخص ہوں، میں اویس القرنی ہوں جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، آئے اویس القرنی، ایسا کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. حضرت اویس القرنی کہتے ہیں، آئے عمر فاروق یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا میں اویس القرنی، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ آئے عمر، آپ صحابی رسول ہیں، آئے عمر آپ خلیفۃ المومنین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آئے عمر آپ نے نبی کو دیکھا ہے، آپ نے نبی کے ہاتھوں کو چھوا ہے، آپ نے نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، آئے عمر آپ نبی کے ساتھی ہیں، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، آئے اویس، میرے نبی نے فرمایا تھا، امام کائنات نے فرمایا تھا، لو اقسم علی اللہ لابر، اگر اویس کوئی قسم کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اویس جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا کو پورا فرما دیتا ہے. آئے اویس میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. میرے نبی نے فرمایا، اویس اپنے ماں کے اتنے خدمت گزار ہیں، جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، وہ جس کے لیے دعا کر دے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، کتنا اونچا مرتبہ دیا ہے. یہ ماں ہے، اس کے قدموں پہ جنت ہے، یہ بہن ہے، اس کی تربیت پر جنت کی بشارت ہے. اگر بیٹی ہے
तो इसकी तरबियत पर जन्नत की बशारत है। और अगर ये बीवी है, अगर ये अपने शौहर की इताअत कर ले, अल्लाह ताला इस पर जन्नत को वाजिब करार दे देता है। मेरे भाई, औरत की इज्जत समझिए, औरत का मकाम समझिए। आज हमारे और आपके वक्त की खवातीन कैसी हैं और अल्लाह के नबी के वक्त की खवातीन कैसी थी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया के अंदर 4 ऐसी औरतें जो कामयाब औरतें और जन्नत की औरतों की सरदार हैं, और वो 4 औरतों में पहली औरत खदीजा बिन्त खुवैलिद है। कौन है? खदीजा बिन्त खुवैलिद अल्लाह के नबी की सबसे पहली बीवी है। और अल्लाह के नबी के जितने भी बच्चे, जितने भी लड़के, जितने भी लड़कियां थी, वो सारी की सारी हजरत खदीजा से पैदा हुई, सिवाय इब्राहिम के जो आपकी लोड़ी मारिया किब्तिया से पैदा हुए। हजरत खदीजा वो औरत है, वो खातून है जो इमाम कायनात पर सबसे पहले ईमान लेकर के आई, जो सबसे पहले इस्लाम लेकर के आई। हजरत खदीजा वो है जो अल्लाह के नबी के सुख में और दुख में आपका साथ देती रही। ये हजरत खदीजा है, ये जन्नत की औरतों की सरदार है, ये कामयाब औरत है। कौन है? ये हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा है। जब अल्लाह के नबी गारे हिरा में इबादत के लिए जाते, हजरत खदीजा खाना बनाती और खुद गारे हिरा में अल्लाह के नबी को देकर के आती। उस वक्त आप नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कर रही है? पहाड़ पर गारे हिरा में खाना देने के लिए जा रही है। कौन? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। आज के वक्त की कोई औरत होती क्या कहती? मेरा आदमी सठिया गया है। इतना ऊपर कहां जाके बैठा? उतना ऊपर। आज की कोई औरत होती कहती मेरा शौहर पागल हो गया। लेकिन ये खदीजा है जो बेचारी जा रही है अपने शौहर को खाना देने। अल्लाह के नबी गारे हिरा में इबादत करते हैं, जिब्राइल अमीन आते हैं, अल्लाह के नबी से कहते हैं इक़रा, पढ़ो। आपने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जिब्राइल ने अल्लाह के नबी को दबाया और इतनी तेज दबाया कि आपकी जान आपकी इंतहा को पहुंच गई। दूसरी मर्तबा वो कहते हैं इक़रा, पढ़ो। आपने फिर फरमाया मा अना बिकारी। तीसरी मर्तबा का इक़रा पढ़ो, कहा मा अना बिकारी। फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं, दौड़े दौड़े हजरत खदीजा के पास आए और कहने लगे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, आए खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, आए खदीजा मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं हलाक ना कर दिया जाऊं, कहीं मैं मार दिया ना जाऊं। ज़म्मिलूनी, आए खदीजा मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा उस वक्त इमाम कायनात को दिलासा देती है, आए मेरे शौहर, आए मेरे सरताज, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप तो भूखों को खाना खिलाते हैं, आप नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, आप कमजोरों की मदद करते हैं, आप बूढ़ों का बोझ उठाते हैं। कल्ला वल्लाह ला युखज़ीका अल्लाहु अबदा, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, अल्लाह ताला आपके अमल को कभी बर्बाद नहीं करेगा। आए मेरे शौहर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो गरीबों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मालूम ये चला मेरे भाइयों, एक बीवी को अपने शौहर को हर जगह हौसला देना चाहिए। जब उसका कारोबार नहीं चल रहा हो तब भी उसको दिलासा दे, जब वो परेशान हो तब भी उसको हौसला दे। हजरत खदीजा अल्लाह के नबी को हौसला दे रही हैं। और इससे ये भी मालूम चला कि बीवी
अपने शौहर की तारीफ करे जब वो अपनी सहेलियों में बैठी हो, जब वो अपने दोस्तों में बैठी हो, तो बीवी अपने शौहर की तारीफ करे, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। और शौहर को भी चाहिए वो अपनी बीवियों की तारीफ करें। शौहर को भी चाहिए, बीवी को चाहिए कि शौहर की तारीफ करे, और शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी की तारीफ करे। लेकिन आज ना तो शौहर तारीफ करता है और ना बीवी तारीफ करती है। क्यों? शौहर कहता है तारीफ करूंगा तो सर पे चढ़ जाएगी, तारीफ करूंगा तो सर पे चढ़ जाएगी, और बीवियां उनकी अपनी मर्जी तो वैसी नहीं करती हैं। और आपके अंदर कोई अच्छाई हो तो वो और उसको बुराई बना देती है। एक आदमी अपनी बीवी को खुश करने के लिए हवा में उड़ रहा था। कहां उड़ रहा था? हवा में उड़ रहा था। उसकी बीवी ने देखा छत से कि भाई एक आदमी हवा में उड़ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब उसका शौहर घर पे आया तो बीवी ने कहा आज मैंने एक आदमी को देखा है और वो हवा में उड़ रहा था। कहा अच्छा, कहा तुमने उसका चेहरा नहीं देखा क्या? कहा नहीं, चेहरा तो नहीं देखा पर वो उड़ रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। कहा वो कोई और नहीं था, मैं ही था। वो कौन था? मैं था। ओहो, तभी तुम टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे थोड़े से। कैसे उड़ रहे थे? टेढ़े टेढ़े। तो आपका उड़ना भी उसको पसंद नहीं आएगा। एक इमाम गुजरे हैं, उनका नाम है इमाम आमश। ये काले कलूटे थे, खूबसूरत नहीं थे, और इनको बीवी बड़ी खूबसूरत मिल गई। कभी कभी होता है लड़का काला कलूटा होता है तो बीवी अच्छी मिल जाती है, या लड़का बड़ा खूबसूरत होता है, बीवी सूरत के एतबार से बड़ी काली कलूटी मिल जाती है। तो इनकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी और ये बेचारे बड़े काले कलूटे थे। तो ये अपनी बीवी से कहते हैं कि मोहतरमा, मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि तुम भी जन्नत में जाओगी और मैं भी जन्नत में जाऊंगा। कहा अच्छा, तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कि आप भी जन्नत में जाओगे और मैं भी जन्नत में जाऊंगी, ये आप कैसे कह सकते हैं? कहा देखो कि मैं तो कितना काला कलूटा हूं तुम्हारे सामने, तुम कितनी खूबसूरत हो, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे इतनी खूबसूरत बीवी दी है। और तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं इतना काला कलूटा हूं, तुम जो सब्र करती हो तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे सब्र के बदले जन्नत देगा और मुझे मेरे शुक्र के बदले जन्नत देगा। तो खदीजा बिन्त खुवैलिद अल्लाह के नबी का साथ देने वाली, हर मोड़ पर नबी के लिए खड़ी रहने वाली, इसीलिए इमाम कायनात को जितनी मोहब्बत अपनी बीवी सैयदा खदीजा से थी और बीवियों से इतनी मोहब्बत नहीं थी। हजरत आयशा कहती है एक मर्तबा मैंने गोश्त बनाया और इमाम कायनात के सामने पेश किया, लेकिन अल्लाह के नबी ने वो गोश्त नहीं खाया। अल्लाह के हजरत खदीजा आयशा कहती है इमाम कायनात आप ये गोश्त क्यों नहीं खा रहे? आए मेरे शौहर आप ये गोश्त खाइए, मैंने बड़ी मोहब्बत से बनाया है। अल्लाह के नबी कहते हैं आए खदीजा, आए आयशा, आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, वो भी इतने ही प्यार से मेरे लिए गोश्त बनाया करती थी। ये हाल है हजरत खदीजा का, ये मकाम है। हजरत जिब्राइल अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं आए अल्लाह के नबी, अभी खदीजा आ रही होंगी, उनके हाथ में सालन वगैरह होगा, सालन का बर्तन होगा। आए अल्लाह के नबी, खदीजा आने वाली है, आप अल्लाह का सलाम, मेरा सलाम और सारे फरिश्तों का सलाम खदीजा को पेश कर दीजिएगा। हम सब की तरफ से खदीजा को सलाम पेश कर दीजिएगा। मेरे भाइयों, ये जन्नती औरत है, कामयाब औरत है, चार औरतें जन्नती औरतों की सरदार है, जिसमें पहली खदीजा बिन्त खुवैलिद, दूसरी फिरौन की बीवी आसिया। कौन फिरौन? अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला कौन फिरौन? मेरे भाइयों, मैंने फिरौन की लाश को अपनी नजरों से देखा है। मैं जब मिस्र गया, जब वहां मैं पढ़ाई करता था, एक मर्तबा गया, मैंने फिरौन की लाश को अपनी नजरों से देखा है, और इतनी बदसूरत है, इतनी बदसूरत है, अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूं, एक मर्तबा जो देख ले दोबारा देखने का मन नहीं करता है। अल्लाह ने उसको निशान इबरत बनाया है, जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था, मैं सबसे बड़ा
रबो, आज उसकी औकात ये है, लोग 2-2 रुपए का टिकट लेकर आज उसकी डेड बॉडी को देखने जाते हैं। मेरे भाइयों, आंखें अंदर धंस गई हैं, जिस्म पर गोश्त नहीं है, खा ले, उसकी लाज का तमाशा बना हुआ है। हजरत आसिया, ये कौन है? उसी फिरौन की बीवी है। इस्लाम ले आई, मुसलमान हो गई, मूसा का कलमा पढ़ लिया, मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, हाथों में कीलें ठोकी जा रही है। हजरत आसिया अल्लाह से दुआ कर रही है, रब्बि इब्निली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमिल ज़ालिमीन। आय अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत में तेरे करीब एक घर का सवाल करती हूँ। आय अल्लाह, तू देख रहा है फिरौन मुझ पर कितना ज्यादा जुल्म करता है, कितना ज्यादा मारता है, कितना ज्यादा सताता है। आय अल्लाह, मुझे फिरौन से नजात दे दे, इसके जुल्म से नजात दे दे। वनज्जिनी मिनल कौमिल ज़ालिमीन, अल्लाह मुझे जुल्म करने वाली इस कौम से बचा ले। ये हजरत आसिया है, मर जाना मिट जाना गवारा तो कर लिया, लेकिन मेरे भाइयों फिरौन के आगे सजदा करना गवारा नहीं किया, फिरौन को रब मानना गवारा नहीं किया। मर गई मिट गई है तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन फिरौन के आगे सजदा करना गवारा नहीं किया। ये हजरत आसिया है, ये जन्नती औरतों की सरदार है। आए मेरी माँ बहनों, अगर बनना है तो हजरत खदीजा की तरह बनो, अगर बनना है तो हजरत आसिया की तरह बनो। तीसरी औरत जो जन्नत की औरतों की सरदार है, वो अल्लाह के नबी की लख्ती जिगर, नबी की आंखों की ठंडक, नूर नजर, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। कौन है? नबी की साहिबजादी है, नबी को बड़ी मोहब्बत है। हजरत फातिमा जब आती, अल्लाह के नबी अपनी चादर को हजरत फातिमा के लिए बिछा देते। एक मर्तबा हजरत फातिमा आई, अल्लाह के नबी घर में मौजूद नहीं थे, अम्मा आयशा घर में मौजूद है। हजरत फातिमा हजरत आयशा से कहती है कि जब मेरे अब्बू आ जाए तो कह देना फातिमा आई थी और आपसे गुलाम का सवाल कर रही हैं। अल्लाह के नबी आए, हजरत आयशा ने पूरी बात बताई। अल्लाह के नबी उसी वक्त हजरत फातिमा के पास गए और कहने लगे, आए मेरी बेटी, तूने मुझसे गुलाम का सवाल किया है। आए मेरी बेटी, मैं तुझे गुलाम नहीं दे सकता, मैंने किसी और से वादा कर लिया है। आए मेरी बेटी, लेकिन मैं तुझे एक जिक्र बता रहा हूँ, 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये गुलाम से ज्यादा बेहतर है। हजरत फातिमा कहती हैं, मैंने फिर कभी गुलाम का सवाल नहीं किया और ये पढ़ने से मेरे पैरों का दर्द भी सही हो गया, मेरे हाथों की तकलीफ भी सही हो गई। आखिरी औरत, फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जो जन्नत की औरतों की सरदार है और सारी दुनिया के मोमिनात के लिए, सारी दुनिया की खवातीन के लिए जो आइडियल है, नमूना है, ये कौन है? ये ईसा की माँ है, ये इमरान की बेटी है, ये मरियम है। मरियम है, बच्चा पैदा होने वाला है, हजरत ईसा पैदा हो गए। हजरत मरियम कहने लगी, आय अल्लाह, मैं इस बच्चे को लेकर कहां जाऊंगी, कौम में क्या मुंह दिखाऊंगी? अल्लाह ने फरमाया, आय मरियम, तुम ये कह देना मैंने खामोश रहने का रोजा रखा है और इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हजरत मरियम कौम के अंदर गई, गांव के अंदर गई, बस्ती के अंदर गई। लोगों ने जब हाथों में बच्चा देखा, फरमाया, या उख्ता हारून मा कान अबूकी मरअसौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। आए हारून की बहन, आए इमरान की बेटी, तेरा भाई कोई बुरा आदमी नहीं है, तेरी माँ भी कोई बुरी औरत नहीं है, तेरी माँ बदकार नहीं है, ये बच्चा कहां से आ गया? फाशारत इलैहि, हजरत मरियम ने इशारा कर दिया, मैंने खामोश रहने का रोजा रखा है, जो पूछना इस बच्चे से पूछ लो। गांव के लोग, बस्ती के लोग कहने लगे, कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। आए मरियम, ये दूध पीता बच्चा है, आए मरियम, ये शीर खार बच्चा है, ये बोल कैसे सकता है? आए मरियम, ये बात कैसे कर सकता है? वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ता है, काला इन्नी अब्दुल्लाह। आए लोगों, मेरी माँ
अल्लाह को बुरा भला ना कहो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजअलनी नबिया, और अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है। अल्लाह ने मिसाल बयान फरमाया है सारी औरतों के लिए, हजरत आसिया को, हजरत मरियम को, हजरत फातिमा को, हजरत खदीजा को, हजरत आसिया को, हजरत हाजरा को। मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारे लिए आइडियल है, ये तुम्हारे लिए नमूना है, इनको फॉलो कर लो, इनके नक्शे कदम पर चलो। आज तुम्हारा किरदार भी फातिमा की तरह हो जाएगा, आज तुम भी आसिया की तरह हो जाओगी, आज तुम भी मरियम की तरह पाक दामन और आसिया की तरह मोमिना और मुवाहिदा बन जाओगी। मेरी माँ बहनों, तमाम बातों पर गौर करो। मेरे भाइयों, एक इस्लामी खातून को होना कैसा चाहिए, एक मुस्लिम लड़की को होना कैसा चाहिए। और याद रखिए मेरे भाइयों, एक आदमी अगर समाज का खराब होता है तो सिर्फ एक आदमी खराब होता है, लेकिन अगर एक औरत खराब होती है तो पूरा गांव खराब होता है, पूरा समाज खराब होता है। अरबी के अंदर कहा जाता है अलमरअतु निस्फुल उम्मा, औरत समाज का, मुआशरे का आधा हिस्सा है, और बचा हुआ जो आधा हिस्सा है वो समाज को भी जन्म देने वाली औरत होती है। एक औरत अगर खराब हो तो पूरा समाज खराब होता है, एक औरत बिगड़े पूरा समाज बिगड़ता है, एक औरत खराब हो आने वाली नस्लें खराब होती हैं। मेरे भाइयों, तो औरत की तालीम तरबियत पर, औरत के अखलाक पर इस्लाम ने बड़ा जोर दिया है, और उसकी इज्जत को, उसके वकार को, उसकी रिस्पेक्ट को इस्लाम ने इतना ज्यादा हाईलाइट किया है। दुनिया के अंदर और मजहबों के अंदर औरतों की इज्जत हो सकती है, लेकिन मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर मैं रब्बे काबा की कसम खा करके कहूंगा, अगर किसी धर्म के अंदर है तो वो धर्म इस्लाम है, अगर किसी दीन के अंदर है तो वो दीन इस्लाम है। आज की मगरिबी तहजीब ने औरत को इतना जलील किया, जब तक एक साबुन के रैपर पर, एक ब्रेड के पैकेट पर, एक तेल के पाउच पर अगर किसी लड़की की तस्वीर ना हो तो वो साबुन नहीं बिक सकता है, वो डबल रोटी नहीं बिक सकती है। हाय हाय, ये कैसी इज्जत है, ये कैसा मकाम है। मेरे भाइयों, दुनिया ने औरत को जितना जलील किया है, औरत ने उसको, इस्लाम ने औरत को उतनी इज्जत दी है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी खवातीन के ताल्लुक से, उनकी इस्लाह के ताल्लुक से। अल्लाह ताला बिलउमूम हम सब को और बिलखुसूस हमारे घरों की खवातीन को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए मेरे भाइयों, क्योंकि औरत ये समाज की जान होती है, औरत ये समाज की बहार होती है। अगर ये खराब तो सब खराब, और ये सही तो सब सही। ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है मेरे भाइयों, अगर ये ज्यादा टेढ़ी हो गई तो पूरे समाज का मामला खराब हो जाएगा। तो औरतों की तरबियत पर, खवातीन की तालीम पर, लड़कियों की तालीम पर जितना लड़कों की तालीम पर जोर देना है, उतना ही जोर मेरे भाइयों लड़कियों की तालीम पर भी देना है। और ये जोर दिया गया है आपके नीमा के अंदर, जहां जामिया सलफिया नूरुल हुदा है, वही मदरसा खदीजा बिन्त खुवैलिद बिल बनात है। जहां लड़कों को तालीम दी जा रही है, वहां लड़कियों को भी तालीम दी जा रही है। मेरे भाइयों, अपने घर की खवातीन को दीन की तरफ लेकर के आओ, उनके सामने फातिमा का, आसिया का, मरियम का और खदीजा का किरदार रखो। अल्लाह ताला उनको इस बात की तौफीक दे। जितने लोग यहाँ पर जमा है, अल्लाह ताला हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए। जितने लोग इस पंडाल के नीचे मौजूद है, जो बहुत दूर दराज का सफर तय करके आए हैं, मुझे मालूम चला है 200 और 250 किलोमीटर का सफर तय करके मेरे भाइयों हम और आप इतनी दूर से यहाँ पर लोग बैठे हैं। अल्लाह ताला उनके 250 और 300 किलोमीटर आने को कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम जो हुआ है, ये महंगाई का दौर है, ये दौर नफसा नफसी का दौर है। इस महंगाई के दौर में इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद करना मेरे भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला नीमा के नौजवानों को और उन लोगों को जिन्होंने प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमा ले। उनकी आंखों को देखिए, उनके जिस्म को देखिए, उनके कपड़ों को देखिए। मेरे भाइयों, आपको एहसास होगा ये कितने परेशान हैं, कितने थके हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी इतनी कोशिशों को कबूल फरमाकर इन सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।